Granthiraj Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 26, Aila Gita, Text 17. Kim etaya no apakritam rajva va sarpachetasah drashtu swarupa vidusho yoham yad ajitendriyah. Kim etaya no apakritam rajva va sarpachetasah drashtuh swarupa vidusho yoham yad ajitendriyah. Kim etaya no apakritam rajva va sarpachetasah drashtuh swarupa vidusho yoham yad ajitendriyah. Anyone like to recite? Kim etaya no apakritam rajva va sarpachetasah drashtuh swarupa vidusho yoham yad ajitendriyah. Kimetaya no apakritam rajva sarpachetasah drashtu swarupa vidusho ajitendriyah. Vaishnavis. Kimetaya no apakritam rajva va sarpachetasah drashtu swavidusho yoham yad ajitendriyah. Kimetaya no apakritam rajva va sarpachetasah drashtu swarupa vidusho oham yad ajitendriyah. Kim. We'll do this in English. उसके बाद में हम हिंदी में क्लास करेंगे. What? Etaya, by her. Na, to us. Apakrutam, offense has been done. Rajva, by a rope. Va, or. Sarpachetasah, who is thinking it to be a snake. Drashtuhu, of such a seer. Swarupa, the real identity. Avidushaha, who does not understand. Yaha, who. Aham, I. Yat, because of. Ajit indriyaha, having not controlled the senses. Translation purport by the followers of Srila Prabhupada. How can I blame her for my trouble when I myself am ignorant of my real spiritual nature? I did not control my senses, and so I am like a person who mistakenly sees a harmless rope as a snake. Purport. When a person mistakes a rope for a snake, he becomes fearful and anxious. Such fear and anxiety are of course illusion, since the rope can never bite. Similarly, one who mistakenly thinks that the material illusory energy of the Lord exists for his personal sense gratification will certainly bring down on his head an avalanche of material illusory fear and anxiety.
King Pururava frankly admits here that the young lady Urvashi is not to blame. After all, it was Pururava who mistakenly considered her to be an object of his personal enjoyment, and therefore he suffered the reaction by the laws of nature. Pururava himself was the offender for trying to exploit the external form of Urvashi. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हे प्रभु, हम सबको मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम समझे किस तरह से हम माया के वश में जाते हैं और किस तरह से हम आपकी शरण में आ सकते हैं. हरे कृष्णा. Is the class being live streamed here or okay? Thank you. That will also come in it or that won't come? They will show. Okay, fine. Thank you. तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आज यहाँ पे आने का मौका मिला है. आई थिंक काफ़ी समय के बाद मैं आया हूँ. मायापुर जाता हूँ तो कभी कभी न्यू टाउन रास्ते में पड़ जाता है, पर यहाँ पे आने का मौका ज़्यादा नहीं मिला है. तो दिस इज़ द ओरिजिनल टेम्पल ऑफ कलकत्ता. और यहाँ से जो है अभी कलकत्ता में बहुत अनेक प्रोजेक्ट्स आए हैं और कलकत्ता हैज़ बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिवोशनल सेंटर अमॉन्ग द फास्टेस्ट. दिल्ली पहले काफ़ी तेज़ी से हुआ, अभी बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता. तो आप सब इसमें सहभागी है कि आप सब ये चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी कृष्ण का जो आंदोलन है आगे बढ़ा रहे हैं. तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके बीच में कुछ भागवत पे कथा करके सेवा करने की संधि मिली है. तो आज हम श्रीमद् भागवतम के इस उद्धव गीता के एक विषय पे चर्चा करेंगे. तो हमारा टॉपिक होगा, मैं यहाँ पे कुछ लिख के ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूँगा. लिखूंगा मैं इंग्लिश में बट क्लास विल बी इन हिंदी. कि जब कोई व्यक्ति कुछ गलती करता है, सो हाउ मच आर सर्कमस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर रॉन्ग डूइंग्स. किस हद तक हमारी परिस्थितियाँ हम अगर कुछ गलत करते हैं तो किस हद तक वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर रॉन्ग्स. इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या परिस्थिति बदलने से वो व्यक्ति कुछ गलत करना छोड़ देगा. कोई शराब पी रहा है तो क्या परिस्थिति बदलने से छोड़ सकता है? कोई किसी चीज़ से आसक्त है बहुत, तो किस हद तक परिस्थिति इंपॉर्टेंट है, किस हद तक सर्कमस्टेंसेस, मोर प्रेसिफिकली एक्सटर्नल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं. और ये जो संदर्भ है ये पुरुरव की कहानी चल रही है, इसको अइल गीता कहते हैं. तो साधारणतया जब भी मैं कोई भागवतम क्लास लेता हूँ तो मैं एक फ्रेमवर्क लेता हूँ, उसको चित्त कहते हैं. चित्त मतलब चेतना. तो उस शास्त्र के श्लोक से हम हमारे चेतना को विकसित बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, एक्सपैंड करने का प्रयास कर रहे हैं. ये 3 पॉइंट्स क्या है? पहले हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, संदर्भ क्या हो रहा है, फिर उसके बाद में उस पर हम कुछ इंसाइट्स देखेंगे, फाइनली एक टेक अवे,
एक या दो हम टेकअवेज प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये संदर्भ यहाँ पे क्या हो रहा है, जो संदर्भ है यहाँ पे ये भागवतम में कितने स्कंद है, सॉरी 12 स्कंद, कितने चैप्टर्स है? ओके, भागवतम में 335 चैप्टर्स है। उसमें से अभी हम कौन से स्कंद में हैं? अभी हम 11वें स्कंद में हैं। तो अभी आपका भी 11वां स्कंद चल रहा है, मैं सिर्फ अलग चैप्टर ले रहा हूँ। तो 11वें स्कंद में अभी हम लगभग एंड पे आ गए हैं। इसमें 30 चैप्टर, तो हम 26 चैप्टर में हैं। और ये 26 चैप्टर को जो बताया जाता है, इसको इस 26 अध्याय को ऐल गीत बताया गया है। ऐल का मतलब है जो ये जो एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, जो इला वंश में आता है, जो इलावृत जैसे कहते हैं, इलापति। तो जो इला वंश में आता है उसको इला, उसका जो एडजेक्टिव है ऐल है। तो ऐल गीता मतलब जो इला वंश में जो राजा आया था वो पुरुरव था। जैसे गोपी गीता है, भगवत गीता है, उद्धव गीता है जैसे, तो पुरुरव को पुरुरव गीता नहीं बताया गया, यहाँ पे ऐल गीता बताया गया, उसके वंश में जो आया है वहां पे। और ये पुरुरव की जो कहानी है ये भागवतम में 2 बार आती है। ये 9वें स्कंद में आती है और 11वें स्कंद में आती है। ये दशम स्कंद जो है वो बहुत लंबा है, पूरे भागवतम में 90 अध्याय आते हैं इसमें, इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द होल भागवतम। तो 9वें स्कंद में ये कहानी आती है। तो ऐसे बहुत ही कम कहानियां हैं भागवतम में जो 2 बार आती है। उल्लेख किसी कहानी का कई बार आ सकता है, पर वो कहानी का ही वर्णन मतलब एक जगह पे, दूसरी जगह पे, ये अलग है। तो 9वें स्कंद में क्या है, जब वो वंशावली का वर्णन हो रहा है, अलग अलग राजा अलग अलग मनवंतर में आए हैं, तो उसमें पुरुरव के जीवन के बारे में बताया जा रहा है। तो उस समय 9वें स्कंद में पुरुरव की कहानी आती है। तो अभी यहाँ पे जब कृष्ण बता, यहाँ पे क्या है, क्रोनोलॉजी चल रही है। इंग्लिश में शब्द क्रोनोलॉजी मतलब क्या, कि समय के अनुसार कोई आपको भारत का इतिहास बताने वाला होगा, तो फिर ओके ठीक है, 15वीं शताब्दी में हुआ ये है, 16वें में ये हुआ, 18वें में ये हुआ। वैसे जो क्रोनोलॉजी वंशावली इतिहास जो बताया जा रहा है, उस समय हिस्ट्री बताते समय एक बार पुरुरव का वर्णन आता है। अभी यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजी नहीं, यहाँ पे फिलॉसॉफी बताई जा रही है। फिलॉसॉफी मतलब कृष्ण उद्धव को संदेश दे रहे हैं, और वो जो संदेश देते समय वो ये ऐल गीत। तो यहाँ पे ये जो 11वें स्कंद में भगवान अलग अलग पहलुओं से और अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड थ्रू डिफरेंट पास्ट टाइम, टू डिफरेंट स्टोरीज, भगवान उद्धव को उपदेश दे रहे हैं। और साधारणतः ये उद्धव गीता का एक कॉमन थ्रेड है कि डिटैचमेंट, कि अभी यदुवंश का अंत होने वाला है, भगवान अपने लीलाओं को विराम देकर भगवत धाम जाने वाले हैं। तो उस समय उद्धव अकेला रहने वाला है, तो उद्धव को अनासक्त होने के लिए उपदेश भगवान दे रहे हैं। तो उसमें जो अलग अलग वृत्तांत है, पहला जो आता है अवंती ब्राह्मण का आता है, सॉरी अवधूत ब्राह्मण का आता है, उसमें पिंगला की कहानी आती है। उसके बाद में अवंती ब्राह्मण के आता है, और आखिरी जो वृत्तांत है यहाँ पे जो बताया गया है वो ऐल गीता है, जो पुरुरव की कहानी है। और जो पुरुरव की कहानी है वास्तव में यहाँ पे कहानी नहीं है, यहाँ पे साक्षात्कार है। मतलब उसके जीवन में अधिक जो घटनाएं हुए वो बताई नहीं है। जैसे जो 9वें स्कंद में बताया था कैसे पुरुरव जो है वो बहुत ही शक्तिशाली, भाग्यवान, चरित्रवान राजा था। वो एक बार उसने उर्वशी को देख लिया और उससे बहुत आकर्षित हो गया, और फिर बहुत प्रयास किया उसने उर्वशी को प्राप्त करने के लिए, और कुछ शर्तों के द्वारा उसको वो प्राप्त हो गई, कुछ समय तक रही, बाद में चली गई वापस। बाद में वो उसने विष्णु को यज्ञ किया,
जिससे कि वो जब विष्णु खुद स्वयं सामने आए तो उन्हें कहा कि मुझे उर्वशी चाहिए, और फिर उर्वशी की प्राप्ति हुई। पर बाद में जो है अभी उर्वशी चली जाती है। जब वो चली जाती है तो तभी जो विचार करता है पुरुरव, उसका वर्णन यहाँ पे आया। तो उसके क्या साक्षात्कार है। तो ये पुरुरव के विचार है, उसमें एक इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन जो है अभी सारे श्लोकों को हम नहीं चर्चा करने वाले, इसी श्लोक पर चर्चा करने वाले, पर इस श्लोक में कैसे थॉट फ्लो हो रहा है। तो शुरुआत में ही इज एंग्री विथ हर, उर्वशी को वो ब्लेम करता है कि मैंने उसको रानी का पद दिया, उसके इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया, और कैसे छोड़ के चली गई मुझे ऐसे। सो ही इज एंग्री विथ हर। पहले ही इज एंग्री विथ उर्वशी फॉर लीविंग, फिर ही इज एंग्री विथ उर्वशी फॉर वेस्टिंग। मैंने अपना जीवन जो है इतना सारा व्यर्थ गवा दिया। आजकल के समाज में लोग कुछ संबंध बनाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है। तो वो शब्द तो है ब्रेकअप, पर उसमें अप नहीं होता है, ब्रेक डाउन ही होता है वो। तो जब ब्रेकअप होता है तो पहले उस व्यक्ति पे गुस्सा आता है, ऐसे कैसे तुम छोड़ के चले गए मुझे। जो इंग्लिश में है वो शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, ही डम्प्ड मी और शी डम्प्ड मी। डंप मतलब क्या, कोई कचरे के डिब्बे में कोई फेंक देता है, वैसे डंप कर दिया मुझे। तो तभी बहुत लोगों को दुख होता है, विलाप होता है, गुस्सा आता है। तो अभी क्या हो गया है, वैसे पहले उस व्यक्ति को दोष देते हैं, अरे कैसे छोड़ दिया इसने मुझे, और फिर खुद को दोष देते कि इस व्यक्ति पे मैंने इतने साल क्यों बताया, इतना समय क्यों पहले छोड़। तो कई बार क्या होता है, जब ब्रेकअप होता है तो व्यक्ति को लगता है कि उसको छोड़ने से पहले मैंने उसको छोड़ना चाहिए। तो इफ आई डंप यू देन आई एम सुपीरियर टू यू, वो भाव होता है कि मैंने तुमको छोड़ा, तुमने नहीं छोड़ा मुझे। तो अभी उसको लगता है कि मैंने इतना सारा समय इस पे व्यतीत कर दिया। तो पहले जो है वो उस पे गुस्सा कर रहा है। तो अभी जब उसे गुस्सा करता है तो नाउ ही इज कमिंग टू द लेवल ऑफ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो खुद को जिम्मेदारी ले रहा है। वो क्या कह रहा है कि किम एतयानो अपकृतम, उसने क्या गलती की, उसकी क्या गलती है, उसका क्या अपराध है, अपकृतम अपराध है। किम एतयानो अपकृतम, वो कहते हैं कि मैंने ही रजवा सर्पचेतसहा, मैंने ही जो रस्सी थी उसको सांप समझ लिया। स्वरूप आविदिशो, क्या है, मैं सत्य क्या है, मैं कौन हूं, जगत का सत्य क्या है वो मैं समझ नहीं पाया। और अजितेंद्रिय, मेरे खुद का इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। तो ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस। तो अभी यह जो है इसके आगे क्या होता है, ही एंड में बोलते हैं कि ही बिकम्स डिटैच्ड। तो वो उर्वशी उन्हें छोड़ देती है, पर वो राज्य को छोड़ देते हैं। उसने कि अभी राज्य का ऐश्वर्य बहुत ले संभाल लिया मैंने, मुझे अभी वो अपने बच्चे को राजा बना देते हैं और वो वानप्रस्थ लेते हैं। फिर ही वॉन्डर्स अराउंड द अर्थ डिटैच एंड ही बिकम्स एनलाइटेंड। और उसके बाद में कृष्ण अपने उपदेश में बोलते हैं कि जब कोई भक्ति करता है तो तभी व्यक्ति जो है उनकी अनासक्ति जो होती है पूर्ण हो जाती है। तो डिटैच यहाँ पे बताया गया। फिर उसके बाद में जो है डिवोशन के बारे में बताया गया है। तो पर डिटैचमेंट और डिवोशन के पहले क्या आया है, ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यह हम इस जो भाव है ये टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो संदर्भ हमारा यह है कि पुरुरव समझ रहा है कि मैं ही मोह में था। तो अभी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में दूसरे को कुछ बहुत ही दर्द देने वाले कुछ वचन बोल देता है। तो फिर अभी वो ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो वो क्यों किया है। तो अभी क्या, अरे उसने ऐसे बोला था मुझे, उसने ऐसे कार्य किया, वो मेरी बात सुनता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ हिम आई डिड इट, उसको दोष दे सकते हैं। पर अभी क्या है, जो हो सकता है कि उस व्यक्ति ने कुछ बोला है ऐसे, पर फिर भी क्या है, जो हमने किया उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। कोई झगड़ा होता है किसी दो व्यक्तियों में,
एक व्यक्ति दूसरे को कुछ बुरा बोलता है, दूसरा अपना हाथ उठा लेता है, उसे मारता है, तो क्या पुलिस क्या बोलेगी? ठीक है, उसने कुछ भी बोला हो, तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम हाथ उठा रहे हो तो तुम जिम्मेदार हो। तो कैसे है कि अभी सर्कमस्टेंसेस किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है और किस हद तक हम रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो इनसाइट्स है, अभी मैं सी हो गया है, CIT, इनसाइट्स में मैं एक एक्रोनिम यूज करूंगा, APT, एप्ट। सो पहला है एनालाइज, कि जो कार्य हुआ, चाहे मुझसे भी हुआ या किसी से हुआ, अगर हम किसी को मार्गदर्शन दे रहे हैं और वो कुछ गलत कार्य करते, वो शायद वो क्रोध के कारण हो जाए, काम वासना के कारण हो जाए, लोभ के कारण हो जाए, तो अगर कोई गलत कार्य करता है तो हमें एनालाइज करना है कि किस कारण हुआ है वो, फिर उसके बाद में प्रोटेक्ट, कि कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और टी हम जो है बाद में देखेगा। तो अभी जो एनालाइज है, जो हमें हमें अन्वेषण करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, विश्लेषण करना है कि ये कार्य क्यों हुआ। तो साधारणतया कोई भी कार्य होता है, अगर जब हम एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे, सो एक है आत्मा, दूसरा है व्यक्ति, और जो व्यक्ति है वो एक परिस्थिति में है। सो दिस इज द सर्कमस्टेंस, ये वास्तव में जगत है ये, पर जो परिस्थिति है। और ये जो है व्यक्ति का अंदर है, तो यहाँ पे उनका माइंड है, और ये व्यक्ति है, ये सोल है, चलिए सोल, माइंड, और लेट्स पुट इट वर्ल्ड। तो अभी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में क्या अलग अलग प्रकार के सर्कमस्टेंसेस आते हैं, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आती है। जो माइंड है, इसमें अलग अलग प्रकार के कंडीशनिंग्स होते हैं। और जो सोल होता है, जो आत्मा होता है, उसमें इंटेंशन होता है, कुछ करने का फैसला होता है। तो कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो उसके जो कारण होते हैं, दे आर 3 लेवल्स। देयर इज सर्कमस्टेंशियल, कंडीशनल एंड इंटेंशनल। मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई बहुत शराब पी लेता है, तो भी शराब क्यों पी उसने? क्योंकि कुछ पार्टी थी और मित्र के साथ गया था, मित्र बोले थोड़ा पी लो पी लो पी लो, और वो पीते गया। तो परिस्थिति के कारण हो गया। पर क्या वो आपके मित्रों ने जबरदस्ती आपका मुंह खोला और आपके मुंह में शराब डाली? नहीं। तो परिस्थिति जो होती है वो पूरे कारणीभूत नहीं है। सो दीज आर नॉट 3 कैटेगरीज ऑफ कॉजेस। ये 3 कैटेगरीज नहीं है कि 3 अलग अलग कैटेगरीज है, पर ये क्या है? दे आर 3 कॉन्ट्रीब्यूटर्स। तो ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है वो ऐसे पार्टी में जाना पड़, शायद उनका ऑफिस का कुछ पार्टी है और आपका बॉस भी आया, बॉस ने बोला उस पार्टी को, तो जाना पड़ता है वहां पे। तो क्या है, वो परिस्थिति होती है, सब पी रहे हैं, तो व्यक्ति बोल सकता है कि मैं कुछ पानी पी लूंगा, मैं कुछ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक ले लूंगा। तो अगर वो उस व्यक्ति में कुछ कमजोरी नहीं है, कंडीशनिंग नहीं है, तो सर्कमस्टेंसेस का प्रभाव नहीं होगा। तो एक कॉज है, मतलब हम कॉजेस देख रहे हैं, तो क्या है? एक कॉज है सर्कमस्टेंसेस, दूसरा है कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग मतलब क्या है? अंदर कुछ संस्कार है जिसके कारण वो व्यक्ति वो कार्य करता है। अभी जो सब शब्द है संस्कार, संस्कार को हम एक सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। क्या है कि जो हम विवाह संस्कार है या नामकरण संस्कार है, तो वो क्या है? ऐसे रीति रिवाज है जिससे कि मन पे अच्छी छवियां बनाई जाए। पर संस्कार का एक और अर्थ है कि जो छवियां बनी है, और वो छवियां अधिकांश कई बार जो नकारात्मक छवियां होती है, तो किसी को बचपन में कोई उन्होंने बड़ा हादसा देख लिया है, तो वो ट्रॉमा है उनके मन में, तो एक संस्कार है। तो संस्कार को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं संस्कार। तो सबके मन में कोई स्कार है, कोई घाव है उनके मन में। तो अभी जो संस्कार, अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ऐसे परिस्थिति में वो जलाता है, कोई जाता है कोई पार्टी में और बोलते क्या है, नहीं मैं शराब नहीं पीता। अरे कब तक तू माँ का दूध पीने वाला बच्चा रहने वाला है, बड़ा हो जा, अभी शराब पी तू। तो क्या है, वो प्रेशर में आ जाता है, शराब पी लेता है। ये है सर्कमस्टेंशियल और कंडीशनल।
पर इसके अलावा एक और चीज है, इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब क्या है कि किसी ने बुलाया नहीं, कोई पार्टी नहीं थी, खुद ही व्यक्ति शराब पीने गया। ना मेरा एक मित्र है, वो उनका भाई था, वो अल्कोहलिक, बहुत वो अल्कोहलिक हो गया था, बहुत एडिक्शन हो गया था उसको। और अभी ये वो बहुत रईस परिवार से थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनका जो घर था उसके आजू बाजू सारे बार्स थे, वहां पे बोल दिया कि ये अगर आएगा तो इसको आप शराब बिल्कुल मत दो। और फिर उसके वो अमीर थे, पर उसे उसे उसका कार था, पर वो कार पे ट्रैकिंग करते कहाँ जाता है वो। तो फिर एक रात को वो सो रहे थे, अचानक वो कुछ कुछ कोई उठ के जाते हुए सुनाई दिया। तो उनका भाई बाजू के रूम में रहता, कहाँ जा रहा है देखा। तो फिर वो चलते चला गया, और उसने क्या किया था कि वो कहीं दूर चला गया था, जहाँ पे उन्होंने लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर और अराउंड सब बास को बोला था कि इसको आप शराब मत देना। वो कहीं 25-30 किलोमीटर दूर चला गया था। और जब घर में आएंगे तो परिवार वाले चेक करते थे, क्या है कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए, तो आपके शराब का बॉटल वगैरह कुछ लाया नहीं है। तो उसने क्या किया था, उसने जो गाड़ी था, गाड़ी के पेट्रोल टैंक में शराब डाल दिया था, और फिर अभी पाइप डाल के उसमें से वो हम स्ट्रॉ से हम ये क्या नारियल पानी पीते हैं, वैसे वो स्ट्रॉ से वो शराब पी रहा था। तो अभी ये क्या हो गया है, ये ये कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग जरूर स्ट्रांग है, पर ये आप जानबूझ के कर रहे हैं, ये इंटेंशनल हो गया है। मतलब क्या है कि इंटेंशनल मतलब वो व्यक्ति खुद करना चाह रहा है, और वो परिस्थिति विरोध कर रही है, परिस्थिति में ऑब्स्टिकल लाए है, पर फिर भी व्यक्ति कर रहा है। तो अभी ये तीनों कॉजेज हो सकते हैं। क्या है कि मतलब जब कोई रॉन्ग डूइंग होता है, जब रॉन्ग होता है, तो उसके 3 कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, सरकमस्टेंस, कंडीशनिंग और चॉइस। तो अभी ऑल 3 आर कंट्रीब्यूटर्स। अभी किसमें कितना कंट्रीब्यूशन है किसका, वो देखना पड़ेगा। कभी कभी जो अभी हम उदाहरण देखते हैं, रावण का उदाहरण और अजामिल का उदाहरण। अभी क्या है, रावण और अजामिल दोनों काम वासना के शिकार हो गए, पर वो बहुत फर्क है उसमें। क्या फर्क है, अभी जो अजामिल था वो अपनी सेवा करने गया था, वो अपने पिता के यज्ञ के लिए लकड़ी लाने गया था, और तभी एक अनपेक्षित रूप से उसने कुछ एक बहुत ही अश्लील दृश्य देख लिया, और फिर उससे वो मोहित हो गया। तो अभी ऐसे नहीं बताया गया वहां पे कि उस दिन वो कहीं नए जगह गया था जहां पे ऐसे कार्य हुआ करते थे। वो रेगुलरली जहां जंगल में जाता था वहां पे गया था, और ये दृश्य उसको दिख गया। तो अभी अजामिल के रॉन्ग डूइंग में क्या है, अधिकांश कंट्रीब्यूटर कौन सा है, सरकमस्टेंस, कंडीशनिंग या चॉइस। सरकमस्टेंस है, जो परिस्थिति जो है उस पे आ गई। तो वो कोई मोह में जाने का प्रयास नहीं कर रहा था, परिस्थिति उस पे आ गई। तो यहां पे जामिल का जो रॉन्ग डूइंग है, इट्स अभी स्टार्ट होता है सरकमस्टेंस से। अभी इसके विपरीत हम रावण का उदाहरण देखते हैं। तो क्या रावण जंगल में सैर कर रहा था, अचानक सीता को देख लिया और सीता के सौंदर्य से मोहित हो गया? वो नहीं। रावण ने क्या किया, रावण ने द सर्कमस्टेंसेस डिड नॉट कम अपॉन हिम, ही क्रिएटेड द सर्कमस्टेंसेस। उसने पूरा एक षड्यंत्र बनाया ताकि क्या होगा, राम और लक्ष्मण सीता से दूर चले जाएंगे, सीता अकेली होगी, और या तो उसको प्रलोभित कर लेगा वो, या उसको अपहरण कर लेगा। तो रावण का जो रॉन्ग डूइंग है वो सर्कमस्टेंशियल है। क्या वो सर्कमस्टेंशियल है? नहीं, वो क्या है, वो इंटेंशनल है। तो यहां पे मतलब क्या है, द सर्कमस्टेंस कम टू अस, वेरएज जब इंटेंशनल होता है रावण का, तो क्या है, वी क्रिएट द सर्कमस्टेंस।
वी क्रिएट सर्कमस्टेंस। तो अभी कैसे है कि आजकल हम सबको, सबके पास फोन है, फोन में हर प्रकार का के अश्लील वगैरह चीजें होती है। तो कोई किसी न्यूज़ साइट पे गया है, कोई कोई ऐप यूज कर रहा है, वो फ्री ऐप है, और वो ऐप खुलने के पहले कुछ अश्लील चित्र आ जाता है, उससे वो मोहित हो जाता है, एक चित्र देख लेता है, फिर और देख लेता है और देख लेता है। तो उसमें क्या है, वो सर्कमस्टेंस अपने आप आ गया है। पर मान लीजिए किसी के फोन पे कुछ ऐसे इंटरनेट सर्वर पे है जहाँ पे इंटरनेट फिल्टर है, वो अश्लील साइट पे नहीं जा सकता है, या अगर जाएगा तो कोई ट्रैकिंग कर रहा है। तो अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था एक हफ्ता पहले, 8-10 दिन पहले। तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्या किया है, जो यूथ है, जो टीनेजर्स है, उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। तो जो 18 के से कम है उन पर सोशल मीडिया, अभी यूके ने भी वो करने का प्रयास किया है। पर अभी हुआ क्या है वहां पे, वो जैसे ही सोशल मीडिया का बैन आ गया, ऑस्ट्रेलिया में जो वीपीएन यूज करते हैं उसका परसेंटेज लगभग 4 टाइम्स बढ़ गया। मतलब क्या है, अगर वीपीएन यूज करते हैं, आई डोंट वांट टू गिव एनीबॉडी आइडियाज नाउ, पर वीपीएन यूज करते हैं तो क्या आप क्या क्या साइट देख रहे हो, आपका सर्विस प्रोवाइडर देख नहीं पाता है, ऐसे लगता है कि आप कहीं और से जा रहे हो। तो अगर कोई ऐसे कर रहा है, मतलब बाहर से कोई रिस्ट्रिक्शन है, व्यक्ति उसको बाईपास करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या वो सर्कमस्टेंशियल है? नहीं, वो क्या है, इंटेंशनल है। तो अभी ऐसे नहीं है कि सर्कमस्टेंसेस कंट्रीब्यूट नहीं करते इंटेंशनल में भी, इंटेंशनल में भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं। रावण जो है, उस सीता का अपहरण उसने किया, पर उसके सर्कमस्टेंस ऐसे था कि उसको एक शाप था, उसके कारण उसने सीता के साथ जबरदस्ती करके उसका अपहरण किया, पर खुद को ही डोंट फोर्स हिमसेल्फ ऑन हर। तो सर्कमस्टेंसेस से कुछ तो चेक था उसको, पर फिर भी क्या है, सर्कमस्टेंस का प्रभाव होता है, पर व्हाट इज द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति गलती करता है, तो वो गलती को अगर सुधारना है तो फिर क्या कारण है, किसके कारण हुआ है, ये तीनों होते हैं, पर विच वॉज द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, वो समझना जरूरी है। अभी अजामिल जब पहले उसने वो दृश्य देखा, तो ये कह सकते हैं, अजामिल की कहानी हम थोड़ा और विस्तारित रूप से देखते हैं। अभी जो उसका फर्स्ट साइट था, पहले उसने देखा, तो हम उसको कह सकते हैं ये 100% सर्कमस्टेंशियल था। पर उसके बाद में क्या हो गया, वहां पे उसने वो देखा, थोड़ा विचलित हो गया, पर खुद को नियंत्रण कर लिया और वो वापस आ गया। पर वो वापस वहां से आ गया, ही केम बैक, बट हिज माइंड डिड नॉट कम बैक। उसका मन वहीं पे रहा, और वो मन जो विचार है बार बार रिप्ले करते रहा, और वो रिप्ले करते रहा, तो क्या हो गया, उससे वो इच्छा और बढ़ गई, वो जो तृष्णा थी वो और बढ़ गई, और फिर वो बाद में उसके पास गया। सो द फर्स्ट इंडल्जेंस, तो पहली बार जब वो भोग में पड़ जाता है, तो अभी जब वो उसके पास गया, क्या उसको सर्कमस्टेंशियल कह सकते हैं हम? नहीं, वो है, वो खुद सर्कमस्टेंस में गया। पर फिर भी हम कह सकते हैं कि अरे परिस्थिति के कारण वो मन विचलित हो गया था, और वह इतना उत्तेजन हो गया कि वो खुद को रोक नहीं पाया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है, हम कह सकते हैं कि से 80% 90% वो क्या है, फिर भी सर्कमस्टेंस था, वो उस परिस्थिति में जाना नहीं चाहता, पर कुछ हद तक वो प्लस और भी है, उसके द्वारा कुछ किया था। अभी वो कंडीशनिंग कह सकते, सब में कंडीशनिंग है, और कंडीशनिंग से वो विचलित हो गया। पर अभी वन इज टू गो टू हर, तो अभी इसको हम कह सकते हैं ये कंडीशनिंग है, सब में कंडीशनिंग होता है, और वो कंडीशनिंग के कारण वो व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर देता है। पर अभी एक है कि उसके पास जाना, दूसरा है कि वो कहना कि that's not that I want to be with her, I want her to be with me, कि मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ आके रहे। अभी इसके लिए क्या करना पड़ा उसको, ये जब वो करना पड़ा उसको, तो अभी एक है बी विथ हर, उसके साथ रहना है, दूसरा है शी बी विथ मी। इसके लिए उसको
बहुत कुछ छोड़ना पड़ा उसको। क्या है, सबसे पहले अपने पत्नी को ठुकरा दिया उसने, अपने पिता माता पिता को ठुकरा दिया, और फिर न केवल क्या हो गया, अभी उसको उसके नौकरी भी चली गई उससे। अभी कोई ब्राह्मण है, वो यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है, अगर कोई ब्राह्मण है जिसने अपने पत्नी को छोड़ दिया और किसी और के साथ रह रहा है, कौन बोलेगा कि ऐसे ब्राह्मण को आके तुम मेरे बेटी का विवाह करो? तो अभी या हमारे घर में आके कुछ पुण्य संस्कार करने के लिए बोलना है, और वो अगर पब्लिकली पाप में जी रहा है, तो कौन लाएगा उसको? तो अभी उसका जॉब भी चला गया। तो अभी क्या हम इसको सर्कमस्टेंशियल कह सकते हैं? क्या इसको हम कंडीशनल भी कह सकते हैं? कंडीशनिंग के कारण हुआ, ये कह सकते हैं कंडीशनिंग के कारण हुआ, पर ये आपने जानबूझ के भी किया है। यहां पे क्या हो गया, ये इंटेंशनल हो गया है। तो यहां पे आई स्लाइटली डिफरेंशिएट, मैं थोड़ा कंडीशनल और इंटेंशनल में फर्क समझने का प्रयास करते हैं। एक में क्या है कि कंडीशनिंग जब होती है तो हम एक युद्ध, वॉर का मेटाफर लेते हैं। अगर वॉर होता है तो मान लीजिए कोई किला है, फोर्ट है, तो अभी ये फोर्ट में एक बड़ी दीवार है। तो कई बार ऐसे फोर्ट होता है, तो फोर्ट के चारों ओर एक दीवार है। तो एक है कि कोई बाहर से आक्रमण करता है और वो बाहर से दीवार को ब्रेक करता है। तो ये हम कह सकते हैं सर्कमस्टेंशियल है। तो मतलब क्या है, बाहर से ही ऐसा आक्रमण आ जाता है कि हमारी जो दीवारें हैं वो टूट पड़ जाती है। ये सर्कमस्टेंशियल हो गया। अभी कंडीशनल का मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, ये जो दीवारें हैं, दीवारों पे आक्रमण जो होता है न केवल बाहर से होता है, वो अंदर से भी होता है। मतलब क्या है कि जो दीवारें हैं, कभी कभी हमको पता है ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हम कर देते हैं। तो ये जो कभी कभी क्या होता है, ये अंदर से ब्रेक करते हैं। ये जो है सर्कमस्टेंस से हो गया। दूसरा है कंडीशनिंग से हम कह सकते हैं। पर एक है कि कोई व्यक्ति जो है ये दीवारों को, दीवार है, दरवाजे खोल देता है या दीवारों को तोड़ देता है। अभी ये हम कंडीशनिंग से कह सकते हैं। पर वो व्यक्ति अगर मान लीजिए वो न केवल एक बार दीवार में क्रैक होने देता है, एक बार दरवाजा खोलना बंद कर देता है, दरवाजा बंद रखना बंद खोल देता है, पर वो दरवाजों को परमानेंटली ही तोड़ देता है, मुझे वो चाहिए ही नहीं बोलता है, तो फिर क्या है, वो कंडीशनिंग नहीं है, वो क्या है, वो इंटेंशन है। तो मतलब ये सर्कमस्टेंशियल, कंडीशनल और इंटेंशनल, इनमें बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। सर्कमस्टेंशियल और कंडीशनल में क्या है कि व्यक्ति वो जो अनर्थ है उनसे संघर्ष करने का प्रयास कर रहा है, पर कभी कभी हार जाता है। तो वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट, बट समटाइम्स वी मे फेल। बट ये दोनों क्या है, ये दोनों कमजोरी के लक्षण है, ये वीकनेस का लक्षण है। पर दूसरी चीज, रावण जो है वो, उसमें वीकनेस नहीं था, उसमें विकेडनेस था। ये कमजोरी नहीं थी, क्रूरता थी। क्रूरता का मतलब क्या है, वन इज नॉट फाइटिंग अगेंस्ट, वन इज फाइटिंग फॉर। क्या है, अभी रावण जो था, अभी सब लोगों में काम क्रोध लोभ ये सब होता है, सब में होता है। तो जिसमें भी काम क्रोध लोभ है, क्या वो सब लोग असुरी होते हैं? नहीं। असुर वो लोग होते हैं जो काम क्रोध लोभ से संघर्ष छोड़ देते हैं और वो काम क्रोध लोभ के लिए संघर्ष करते हैं। अभी रावण वॉज नॉट फाइटिंग अगेंस्ट हिज लस्ट, ही वॉज फाइटिंग फॉर हिज लस्ट। पूरा रामायण का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि वो काम वासना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं चल रहा, काम वासना के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था।
तो अब इसलिए अभी किसी को मदद करना है तो कैसे मदद करना है यह समझने के लिए हमें एनालाइज करना जरूरी है कि वो व्यक्ति क्यों वो कार्य कर रहा है। तो हर एक में तीनों होता है। अभी इंटेंशन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होता है, पर इंटेंशन कभी 5% होता है और सरकमस्टेंस 90% हो सकता है। कंडीशनिंग भी होना चाहिए। अगर कंडीशनिंग नहीं होगा तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए किसी ने कभी शराब पिया नहीं है, शराब पीने की इच्छा भी नहीं है, तो उसको शराब के बाहर में भी लेके जाएंगे तो वो शराब नहीं पिएगा। कि कोई उसका मुंह खोल के शराब उसके मुंह में डाल देगा तो भी वो बाद में वॉशरूम में जाके शराब वो स्पिट आउट कर देगा। तो क्या है, इंटेंशन कुछ हद तक होना चाहिए, पर कितना कंपोनेंट है। तो ये 3 कंपोनेंट से भी एनालाइज हम कर रहे हैं। तो जब तक हम सरकमस्टेंस को ब्लेम करते हैं, जब तक पुरुराव बोल रहा है कि ये उसने मुझे इतना दुख दिया, उसने मेरा इतना सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया, तब तक जब हम सरकमस्टेंस को ब्लेम करते हैं तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। वी कैन नॉट ग्रो। तो हमारे ग्रोथ के लिए हम सरकमस्टेंसेस रोल प्ले करता है, पर वी कैन नॉट कीप ब्लेमिंग सरकमस्टेंसेस। तो अभी वी मूव टू द सेकंड पार्ट। व्हाट इज द एक्रोनिम, यू रिमेंबर्स? एप्ट बोल रहा था। एप्ट मतलब क्या है? व्हाट इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड एंड डील विद द अनर्थास। सो पहला था एनालाइज, नाउ पी है प्रोटेक्ट। तो अभी हम जो प्रोटेक्ट करते हैं, सो हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स? तो अभी क्या है इसमें, जैसे बताया था कोई आक्रमण करने वाला है, कोई किला है, किला को बड़ी दीवारें होती है, वो दीवारों से व्यक्ति प्रोटेक्ट होता है। तो प्रोटेक्ट कैसे होते हैं? हमको बाउंड्रीज चाहिए। भगवान कहते हैं अगर मन को नियंत्रण करना है तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो जो वैराग्य है उसको, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एस्टैब्लिश वैराग्य इज थ्रू बाउंड्रीज। तो जो बाउंड्रीज होते हैं वो 2 प्रकार के होती है, एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। अभी आई एम बेस्ड इन मुंबई, तो कई जो मूवी स्टार्स वगैरह हैं वो भी अभी थोड़े आध्यात्म में रुचि लेने लग गए हैं। तो मेरे एक मित्र फेलो ब्रह्मचारी है, वो ही इज कल्टिवेटिंग मेनी पीपल इन बॉलीवुड ऑल्सो। तो वो बता रहे थे कि वो जो एक बॉलीवुड स्टार था, he said I liked ISKCON very much, but he said he was very very angry with one video which came from one prominent ISKCON preacher। कि वो क्या बता रहा था कि ये इंडिया में रेप्स बहुत होते और उसके लिए बॉलीवुड रिस्पॉन्सिबल है। तो बोला दिस इज टोटल नॉनसेंस। ही सेड कि वो वक्त क्या कह रहा था कि बॉलीवुड में इतनी अश्लीलता दिखाई जाती है, उसके कारण लोग उत्तेजित हो जाते हैं, उसके कारण लोग ऐसे घृणास्पद कार्य कर देते हैं। बोलते थे ये रिडिक्यूलस लॉजिक है। बोला वो पाश्चात्य देशों में अश्लीलता और दिखाई जाती है। जो इंडियन मूवीज में जो न्यूडिटी है वो इतना एक्सप्लिसिट नहीं होता है, पाश्चात्य देशों में होता है, पर पाश्चात्य देशों में ऐसे नहीं होता है। तो उसका कहना था कि पीपल आर एनिमल्स, डोंट ब्लेम मूवीज फॉर दैट। देखिए कोई भी बॉलीवुड मूवी में रेप को ग्लोरीफाई नहीं करते। कोई जो ऐसे कर रहा है बलात्कार, वो बहुत अच्छा व्यक्ति, ऐसे कभी नहीं बताया था। पहले के मूवीज में होता था कि वो रेप दिखाते थे, कोई विलन रेप कर रहा था और वो पॉपुलर सीन्स हुए करते। आजकल के मूवीज में वो रेप कभी दिखाते भी नहीं है, जनरली स्पीकिंग। हो गया ऐसे बताते हैं पर दिखाते नहीं है। तो बोल रहे हैं कि ये यू आर मिस एजुकेटिंग पीपल, कि ये टू कॉल ये बॉलीवुड के कारण हो रहा है। ये वी आर नॉट रिकमेंडिंग रेप एट ऑल। और बॉलीवुड में हम रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, and he told me can I talk with him, तो I was talking with him for almost 2 hours and explaining। तो उसका तो इस वक्त से बात किया, फिर मैंने I was talking with that star also, I don't want to mention names over here। तो पॉइंट ये है कि जो एक है कि डिजायर को प्रोवोक करना, दूसरा है डिजायर को बाउंड्रीज के परे ले जाना। तो अभी क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं।
अगर कोई मान लीजिए कहता है कि कोई बहुत अच्छा शॉप है और शॉप में बहुत सी एक्सपेंसिव चीजें हैं, उनकी शॉप विंडोज में दिखाई है, तो शॉप विंडोज में सारी चीजें एडवर्टाइज की है, और कोई बोलता है कि अरे उन्होंने इतना अच्छा एडवर्टाइज किया, मैं क्या करूं, मैं जाके चोरी कर लिया उसको। नहीं, क्या है कि वो एडवर्टाइज करेंगे, वो एडवर्टाइज करने से आप में इच्छा आ जाएगी, बट यू हैव टू हैव रिस्पेक्ट फॉर। तो अभी क्या है कि नाउ वी आर नॉट सेइंग दैट कि बॉलीवुड में जो डिपिक्ट किया गया है वो उससे लस्ट इन्फ्लेम नहीं होता है, बट वो लस्ट के कारण अगर कोई काम वासना के कारण कोई कार्य करता है, वो आप सर्कमस्टेंसेस पे ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मर्यादाओं के अंदर रहना ये व्यक्ति की जिम्मेदारी है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बिट मोर। जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज होते हैं और इंटरनल बाउंड्रीज होते हैं, तो एक्सटर्नल बाउंड्रीज जो होते हैं दो होते हैं मेनली, एक है लॉ और दूसरा है कल्चर। लॉ मतलब क्या कि अगर आप ये कार्य करोगे तो आपको सजा मिलेगी। पाश्चात्य देशों में शराब पीना बिल्कुल नॉर्मल है, पर जब शराब पी के ड्राइविंग करना बहुत बड़ा क्राइम है। तो मेरे एक वक्ता है बताए थे कि सात्विक ड्रिंकिंग भी होता है। मैं बोला सात्विक ड्रिंकिंग क्या होता है भाई? बोले कि जब कोई लोग पार्टी को जा रहे हैं, तो 5-6 लोग साथ में कार में जा रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति वो बोलता है कि इस बार नहीं, तुमको तपस्या करनी है, तुम ड्राइविंग करने वाले हो, तुमको शराब नहीं पीना है बिल्कुल। तो उतनी तो सद्बुद्धि है, हमको ऐसा सद्बुद्धि तो शराब क्यों पीना है, बात सही है वो, पर क्या है उतनी तो सद्बुद्धि है कि शराब नहीं पीना है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में, तो एक वक्त बता रहे थे मुझे कि अभी वो ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे बच्चे बड़े होते हैं, तो दे ऑल्सो वॉन्ट टू बिलोंग टू देयर, वहाँ पे अपने मित्र है सब, से वेन एवर ही गोज फॉर अ पार्टी आई इंश्योर दैट ही इज ऑलवेज ड्राइविंग। तो वो ड्राइव करेंगे तो वो शराब नहीं पी पाएगी। तो अभी क्या है, जो लॉ है, अगर लॉ का भय है तो लॉ, कानून एक बाउंड्री होता है। तो अगर लॉ का भय नहीं है तो लोग कार्य करते हैं। अभी मैं ऋषिकेश को वो अभी आ रहा था यहाँ पे, तो हमने देखा कैसे अभी वर्ल्ड योगा फेस्टिवल के शायद मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो अभी ऋषिकेश जो है वर्ल्ड योगा कैपिटल बताया जाता है, और वहाँ पे पाश्चात्य देशों से बहुत से लोग आते हैं जो योगा सीखने के लिए, योगा को एक्सप्लोर करने के लिए, स्त्रियाँ भी बहुत आती है। तो ऋषिकेश में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरकार और पुलिस बहुत तत्पर है, क्योंकि उनके लिए क्या है, जो यहाँ पे जो पाश्चात्य देशों से लोग आ रहे हैं, वो उनके लिए बिजनेस है, धंधा है उनके लिए। और अगर ऐसा हो गया कि यहाँ पे स्त्रियां सेफ नहीं है, तो फिर वो आना बंद हो जाएंगे, तो सबका जो धंधा है चौपट हो जाएगा। तो मतलब क्या है, सरकार जो है वो लॉ इंपोज कर रही है। तो अभी जो बॉलीवुड के मूवीज यहाँ पे आते हैं, वहां पे भी आते हैं, पर तो ऐसे लॉ जो बाउंड्रीज है वो क्या है वो देखना जरूरी है। एक है लॉ, दूसरा है कल्चर। कल्चर मतलब क्या है, जिस प्रकार की संस्कृति में हम रहते हैं उसके अनुसार कुछ बॉर्डर्स आते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति गालियां देने की उसके स्वभाव है, पर वो किसी संस्कृत कल्चर्ड कम्युनिटी में आता है, तो वो जब बोलेगा तो वो होगा कि गालियां अवॉइड करने का प्रयास करेगा, क्योंकि क्या है वो उस प्रकार कल्चर होता है, तो उसमें लोग गालियां अवॉइड करते हैं। अभी जो स्मोकिंग करना था काफी हद तक स्टाइलिश था। अगर 10-15 साल पहले के मूवीज में देखें तो सारे हीरो स्मोकिंग करते, अभी भी इंडिया के मूवीज में लोग हीरो स्मोकिंग करते, पर पाश्चात्य देशों के मूवीज में बिल्कुल लोग स्मोकिंग नहीं करते हीरोज। तो क्या है, वो स्मोकिंग आपको करना है तो करो, पर आप वो प्राइवेट स्पेसेस में करो। तो अगर कोई पब्लिक में स्मोकिंग करने लगता है, लोग सारे डिसअप्रूव करते हैं और वो जो स्मोकिंग बंद कर देता है। तो कल्चर का भी प्रभाव होता है। तो इसलिए लॉ और कल्चर ये जो दो है, ये दो एक्सटर्नल बाउंड्रीज है। अभी सॉफ्टवेयर की जो कंपनीज है, उसमें बहुत से लोग जो है वो वेस्टर्नाइज हो गया है, तो वहां पे बहुत से अफेयर्स होते लोगों में। पर जो सॉफ्टवेयर कंपनी में लोग होते हैं, वहां पे रेप्स नहीं होते। अभी वो सॉफ्टवेयर में लोग काम करने जाते हैं, उन पे दूसरे लोग रेप करते हैं, हो सकता है, पर क्या हो गया है कि वहां पे वो जो कल्चर है, वो कल्चर में कि द अदर पर्सन्स कंसेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये समझ आ गई है।
कुछ लोगों क्या है कि मुझे भोग करना है और दूसरा व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति एक ऑब्जेक्ट जैसे है, उसकी इच्छा का कुछ परवाह नहीं है, आई विल फोर्स माई सेल्फ। तो वो जो है कल्चर से भी वैल्यूज शेप होती है। और इंटरनल जो है दो बाउंड्रीज होते हैं, एक है इंटेलिजेंस और दूसरा है कॉन्शियस। इंटेलिजेंस मतलब जो हमारी बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस से हम इसका क्या परिणाम होगा। इंटेलिजेंस मीन्स दिस विल लीड टू बैड, ये करने से प्रॉब्लम आएगा, दिस विल लीड टू बैड। तो मान लीजिए कोई किसी को डायबिटीज है, उसको स्वीट्स की बहुत आसक्ति है, तो अगर बुद्धि होगी तो क्या होगा, स्वीट्स पे आकर्षण तो होगा पर इससे बहुत बुरा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। अभी रावण काम वासना का प्रतीक है, पर फिर भी क्या है, उसके भी काम वासनाओं को सीमाएं थी। क्या सीमा थी, मुझे सीता का भोग करना है पर उसके लिए जान नहीं गंवानी है मुझे, तो इसीलिए उसने सीता पे जबरदस्ती करने का प्रयास नहीं किया। उतनी तो बुद्धि थी। फिर बोलेगा उसने युद्ध क्यों किया, फिर उसको विश्वास था, ये भ्रांत विश्वास था कि मैं राम को हरा सकता हूं, और उसका क्या भाव था कि जब मैं राम को हरा दूंगा, राम को मार डालूंगा, तो अभी सीता को कोई और आश्रय नहीं रहेगा और फिर सीता खुद मुझ में सबमिट कर देगी खुद को। तो मतलब क्या है कि नो बडी कैन से कि जो मेरी कंडीशनिंग्स है उसको कोई बाउंड्रीज है ही नहीं, मैं उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता। सब लोग कंट्रोल करते हैं पर उनके लिए कौन से कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस है। तो व्यक्ति बोल सकता है कि अरे मैं मांस छोड़ नहीं सकता, मैं मांस के बिना जी नहीं सकता। कोई एक हार्ट अटैक आ जाता है, डॉक्टर बोलते हैं तो मांस छोड़ो, या अगर वापस अगला हार्ट अटैक आ जाए तो मर जाओगे, थोड़ा मुझे मांस चाहिए है पर मुझे जीना और महत्वपूर्ण है। तो क्या है, दिस विल लीड टू बैड। अगर बुद्धि से हम समझते हैं तो अभी मांस खाना ये इलीगल नहीं है। मांस खाना ये कल्चर में भी ऐसे, अगर आप भक्तों के बीच में तो मांस खाना गलत है, पर साधारण कल्चर में इट इज नॉट नेसेसरली डिसअप्रूव्ड। पर क्या है, बुद्धि के स्तर पे समझते हैं तो वो भी एक बाउंड्री आता है। और चौथा बाउंड्री है, यह है कॉन्शियंस। नॉट दैट दिस विल लीड टू बैड, बट दिस इज बैड। मतलब ऐसे नहीं कि ये करने से मुझे परेशानी होगी, ये गलत है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोई नया व्यक्ति आया है मंदिर में, और मान लीजिए हम सीनियर डिवोटी है, और फिर वो व्यक्ति हमारे बीच में आता है, उसको बोले बाजू को जाओ, उससे हम रूडली बात करते हैं, और बाद में हमको पता चलता है कि वो भक्त जो है वो हमारे ही गुरुदेव के बहुत क्लोज डिसाइपल है। ओ सॉरी सॉरी, मैंने बड़ा वैष्णव अपराध कर दिया, आप गुरुदेव को मत बताना, वो मेरे मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये कॉन्सिक्वेंस खराब हो जाएगा, इसीलिए हम एपोलॉजी कर रहे हैं। पर मान लीजिए हम सीनियर डिवोटी, कोई जूनियर डिवोटी है, उसको धक्के लेते हैं और आगे जाते हैं दर्शन करने के लिए, और बाद में लगता है एक्चुअली ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे। तो अभी वो जूनियर डिवोटी है, वो हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करने वाले हैं, वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, पर फिर भी हमको अंदर से लगता है कि ये गलत है, ऐसा बर्ताव गलत है, तो हम उनसे थोड़ा चिल्लाते हैं या थोड़ा अलग बर्ताव करते हैं, तो जाके बोलते हैं आई एम सॉरी, यू नो आई शुड नॉट हैव स्पोकन लाइक दैट। तो ये क्या है, कॉन्शियंस है, ये विवेक बुद्धि है। तो अभी इनमें से कौन सी बाउंड्री सबसे अच्छी है, लॉ, कल्चर, इंटेलिजेंस और कॉन्शियंस? कौन सी बाउंड्री सबसे अच्छी है? जो भी काम करती है वो अच्छी है। मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स कॉन्शियंस इज द बेस्ट बाउंड्री, पर अगर कॉन्शियंस नहीं है तो कोई ना कोई तो बाउंड्री होना चाहिए। सो दिस इज द लास्ट पार्ट आई टॉक अबाउट नाउ। क्या बोल रहे हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चारों बाउंड्रीज को डेवलप करना है। तो अभी जब हम भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तो लास्ट पार्ट जो बता रहा, एप्ट बता रहा था, टी इज ट्रांसेंड। जो हम ट्रांसेंड कर रहे हैं, ट्रांसेंड मतलब वो वासना के, वो कंडीशनिंग के ही परे चला जाना। मतलब जैसे हम हरिदास ठाकुर देखते हैं, वो वेश्याओं के सामने आती है, वो इच्छा भी नहीं होती उसको, प्रलोभन होता ही नहीं है, तो क्या है, वो ट्रांसेंड कर गए। अभी भक्ति के द्वारा हम ट्रांसेंड भी कर लेंगे,
पर वो ट्रांसेंड करने के लिए बहुत समय लग सकता है। तो उसके पहले तो अभी हमें क्या करना है, हमें ये बाउंड्रीज खुद एस्टैब्लिश करने का प्रयास करना है। तो विच एवर बाउंड्री वर्क्स बेस्ट फॉर अस, वी नीड टू इंप्लीमेंट दैट बाउंड्री। तो दिस इज जो हमारे लिए टेक अवे जो है, अभी टेक अवे क्या है कि ये चारों बाउंड्रीज जो है हमें एस्टैब्लिश करनी है। तो कुछ चीजें लॉ होती है, तो अगर लॉ होगा तो अच्छा है, पर ये क्या लॉ एस्टैब्लिश करना क्या हमारे कंट्रोल में है? नहीं, नॉट इन आवर कंट्रोल। और महाभारत में यह विस्तारित वर्णन भी डिस्कस होता है कि लीगल और मॉरल सारी अनैतिक चीजों को गैर कानूनी बनाना चाहिए या नहीं। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर डिस्कस करते हैं, तो जो राज्य है उसको पर्सनल मोरालिटी में नहीं जाना चाहिए, तो वो माइक्रो कंट्रोल हो जाएगा। तो अभी लॉ अगर है फेवरेबल तो अच्छी बात है, पर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या कल्चर हमारे कंट्रोल में है? ये पार्टली हमारे कंट्रोल में। मतलब क्या है कि वी कांट चेंज द कल्चर आउट अराउंड अस, बट वी कैन चूज विच कल्चर वी बिलोंग टू। अगर हम सोचेंगे कि मेरे मित्र कौन से चाहिए, भौतिकवादी लोग मित्र चाहिए, तो फिर क्या होगा? जो काम क्रोध लोभ में ज्यादा वो भोग करते हैं, ऐसे लोगों से हम करेंगे तो क्या, ऐसा संग करेंगे तो क्या वो प्रभाव होगा? तो पार्ट में क्या है, चूज विच कल्चर टू बिलोंग टू। अगर हम भक्तों के संग में रहते हैं तो क्या होगा, भक्ति के द्वारा भी हमको एक कल्चर मिलता है, और वो जो कल्चर होता है उससे क्या होता है, वो कल्चर से वास्तव में व्यक्ति को जो अपनी कंडीशनिंग्स को नियंत्रण करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। ऐसे नहीं कि कल्चर से सब कुछ ओके हो जाएगा। अभी जो कल्चर होता है, तो अभी हम मंदिर में आते हैं तो पुरुष स्त्री सेपरेट रहती है, तो वो क्या है, कल्चर है। वी डोंट वांट टू फोकस ऑन ईच अदर। हमें क्या है, हमारा मन भगवान पे लगाना है। जब हम कोई भी साधारणतः किसी भी धार्मिक जगह पे जाते हैं, वो मंदिर में हो, चर्च में हो, मस्जिद में हो, लोग थोड़ा वो डिसेंट ड्रेस पहन के जाते हैं, वो रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कल्चर है वो। तो हम किस कल्चर को बिलोंग कर रहे हैं वह हमें चूज करना है, वो हमारे कंट्रोल में है। अभी हमारा इंटेलिजेंस क्या वो हमारे कंट्रोल में है? हाँ, दिस इज मोस्ट इन आवर कंट्रोल। ये भी पूरा हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर क्या है कि हमारे बुद्धि से हम क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं ये करूंगा तो इसका क्या परिणाम होगा। इसीलिए दैट्स वाई शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को सुनना, शास्त्रों पे मनन करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और खास करके जो अनर्थ हमें परेशान कर रहा है, वो अनर्थ का सामना करने के लिए जो शास्त्र में बताया गया है, जो उस पे क्लासेस दी है, जो उस पे पॉइंट्स है, वो हमको सुनना बहुत जरूरी है। तो वो जब हम सुनते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो हम वास्तव में ऐसे नहीं कि उससे कंडीशनिंग चली जाएगी, कंडीशनिंग रहेगी, पर हम जो है प्रिकॉशन और लेने लग जाएंगे। तो अगर मान लीजिए किसी को समझता है कि मुझ में क्रोध ज्यादा है, मान लीजिए किसी का अत्याहार करने का भाव है, तो मान लीजिए किसी को स्वीट्स का बहुत वीकनेस है, और वो व्यक्ति कहता है कि मैं महाप्रसाद इंचार्ज बन जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, वो महाप्रसाद इंचार्ज नहीं बन जाएगा, महाप्रसाद उनका इंचार्ज बन जाएगा। इज इट इट? तो वो खुद ही उसका सब भक्षण कर लेंगे। तो अभी क्या है कि अगर आपकी बुद्धि सदी है तो हाँ, नहीं, मुझे ऐसे भक्षण नहीं करना चाहिए। और शायद जब हमारी बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस से इट डजंट रिमूव आवर वीकनेसेस, हमारे अनर्थ जो है कंडीशन चली जाती है, बट इट हेल्प्स अस टू एड्रेस द वीकनेसेस। मतलब कौन से परिस्थिति में नहीं जाना है ये भी हम समझ जाते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस को डेवलप करना, ये सबसे ज्यादा हमारे कंट्रोल में है। अभी कॉन्शियंस जो है, विवेक बुद्धि है, क्या ये मैं बता, दिस इज द इन वन सेंस द बेस्ट,
बट दिस इज ग्रेजुअल, ये धीरे धीरे होता है, ये प्यूरिफिकेशन से होता है, भक्ति के द्वारा ये धीरे धीरे क्या होगा, हमारी विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी। और फिर ये नहीं करना है, क्यों, किससे मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा, ऐसा भोग करने से मैं नरक में जाऊंगा, ऐसा करने से पाप लगेगा, नहीं, ये नहीं करना है क्योंकि ये गलत है, ये नहीं करना है क्योंकि कृष्ण, दिस विल डिस्प्लीज कृष्ण। तो ये जो है हाईएस्ट है, एंड वी वांट टू कम टू दैट। क्यों उल्टा क्या करना है हमको, वी वांट टू प्लीज कृष्ण, देयरफॉर वी डोंट वांट टू प्लीज डिस्प्लीज, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जन। पर जो हमारी बुद्धि को विकास करना है वह हमारे लिए एट आर स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स नॉट द ओनली सॉल्यूशन, बट इट इज द सॉल्यूशन मोस्ट इन आर कंट्रोल। तो दैट ब्रिंग्स मी टू टेक अवे, जो हमारा चाहिए थे टेक अवे क्या है यहाँ पे, कि जब हमको अगर सेल्फ कंट्रोल चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, तो दो एक्सट्रीम्स है। एक है कि पूरा सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम कर देना, अरे ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकता हूं, ये कलयुगी है, ये दुनिया ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। वो अगर सर्कमस्टेंसेस पे ब्लेम करेंगे तो जब परिस्थिति अच्छी हो जाएगी तब मैं खुद को नियंत्रण कर लूंगा, वो गलत है। दूसरा है कि पूरा विल पावर पे बोल देना कि मैं मेरे विल पावर से कुछ भी परिस्थिति क्यों नहीं आ जाएगा उसको मैं कंट्रोल कर लूंगा। ये दोनों एक्सट्रीम्स है। पूरा हम सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, केवल हमारे विल पावर को पे हम रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि अगर हम में कंडीशनिंग्स है तो कितना भी विल पावर क्यों ना हो वो इरोड हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, हमें सेल्फ कंट्रोल चाहिए, तो क्या है, हमें इंटेलिजेंस से हमको ट्रांसेंडेंस की ओर जाना है। इंटेलिजेंस टू ट्रांसेंडेंस, इंटेलिजेंस टू ट्रांसेंडेंस कैसे होता है, बेसिकली हम हमारे इंटेलिजेंस से वी प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम आवर सर्कमस्टेंसेस, हमारे इंटेलिजेंस से वी स्ट्रेंथन आवर विल पावर। हमारे बुद्धि से हम समझते हैं कि क्या सुनने से, क्या करने से मेरा दृढ़ संकल्प और बढ़ जाएगा, क्या परिस्थिति में मेरा दृढ़ संकल्प कम हो जाएगा, क्या परिस्थिति में मेरे जो कंडीशनिंग है और बढ़ जाएगी। और ऐसे करने से हम धीरे धीरे जो है दिव्य स्तर पे जाएंगे। तो जो 3.43 है भगवद्गीता में, एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसके तात्पर्य में जीव गोस्वामी बोलते हैं कि जब हम शुद्ध हो जाएंगे, जब हमें कृष्ण प्रेम हो जाएगा, तो प्रीति के कारण हम भगवत भक्ति में रहेंगे। पर जब तक प्रीति नहीं है तब तक बुद्धि से हमें भक्ति में रहना है। जब प्रीति मतलब कृष्ण से इतना आकर्षण है कि कोई भी प्रलोभन आएगा ध्यान भी आएगा उसकी ओर, पर जब तक वो नहीं है तब तक बुद्धि से हमें समझना है कि व्हाट विल मेक मी वीक, उससे दूर रहो, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। और जो मुझे स्ट्रेंथन करेगा, जो मुझे स्ट्रांग बनाएगा, मेरे विल पावर को स्ट्रांग बनाएगा, उससे करीब जाओ। तो ऐसे करने से वी कैन ऑल बी प्रोटेक्टेड एंड अल्टीमेटली वी कैन अटेन ट्रांसेंडेंस। तो सारांश में तो हमारा हाउ टू प्रिवेंट रॉन्ग डूइंग, किस हद तक परिस्थिति रिस्पॉन्सिबल है हमारे रॉन्ग डूइंग के लिए, कैसे हम रॉन्ग डूइंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमने 3 पॉइंट देखे। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कैसे ये भागवतम के 11वें स्कंद में अइल गीता की कहानी है। अइल गीता जो है, इसमें पहले क्या है, वो ब्लेम कर रहा है, फिर क्या होता है, वो टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बाद में वो डिटैच हो जाता है, अंत में भक्ति आ जाती है। तो ये टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है, उस पर हमारा मेन क्लास था। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमने 3 चीज देखे, ए, पी और टी। पहला ए क्या था, एनालाइज, एनालाइज कि जो गलत कार्य हुआ है वो किसके कारण हुआ है। तो हमने देखे इसके 3 कारण होते हैं। किसी का 3 कारण, सरकमस्टेंस होता है, फिर कंडीशनिंग होता है, और फिर तीसरा क्या है, हमारा इंटेंशन या हमारा चॉइस होता है।
तो अभी कितना क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हर एक केस के अनुसार हमें देखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि जो रावण का था वो पूरा लगभग इंटेंशनल था, अजामिल का जो था वो लगभग स्टार्ट तो कम से कम पूरा सरकमस्टेंशियल था। तो ये तीनों जो है, तीनों एक कैटेगरी नहीं है, ये तीनों कंट्रीब्यूटर्स है। फिर हम देखा खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट कैसे करना है हमको खुद को, क्या है, मेनली हमको बाउंड्रीज चाहिए। तो बाउंड्रीज कहां से आते हैं, 4 बाउंड्रीज हम देखे। एक्सटर्नल कौन से 2 बाउंड्रीज थे, लॉ है और कल्चर है, कानून है और संस्कृति है। और इंटरनल कौन से बाउंड्रीज है, जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है और कॉन्शियंस है। इन्हें फर्क क्या है, इंटेलिजेंस मतलब क्या, ये करने से बुरा होगा, कॉन्शियंस मतलब ये ही बुरा है। तो इनमें से बेस्ट बाउंड्री कौन सा है, विच एवर वर्क्स हम कह सकते हैं। तो बेस्ट को हम 3 तरह से सकते हैं कि विच एवर वर्क्स ये बेस्ट है हमारे लिए, और तो हमें देखना है क्या हमारे लिए जरूरी है। तो दूसरा हम कह सकते हैं विच इज मोस्ट इन आवर कंट्रोल, मोस्ट कंट्रोलेबल फॉर अस, एंड विच इज द सेफेस्ट फॉर अस। तो सेफेस्ट जो है वो कॉन्शियंस है। तो जब हम बाद में ट्रांसेंड कर लेंगे तो क्या होगा, हमारी विवेक बुद्धि ही जो पूरी बदल जाएगी। तो हमें बुरा करने के प्रति चलेगा। ये जो है, हमें जो मोस्ट कंट्रोलेबल जो है हमारा इंटेलिजेंस है। तो इसीलिए अगर हमारा टेक अवे क्या था, हमें अगर सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना है तो क्या है, हमें इंटेलिजेंस पे जोर देना है। पूरा कभी सरकमस्टेंस को ब्लेम नहीं कर रहा है, पूरा विल पावर पे या डिटर्मिनेशन पे रिलाय नहीं करना है कि मैं दृढ़ संकल्प से सब कुछ कर लूंगा। क्या है, मुझे मेरे इंटेलिजेंस से, बुद्धि से ऐसे काम करना है कि जो सरकमस्टेंसेस से दूर रहो, विल पावर बढ़ाने वाली चीजों के पास जाओ, प्रतिकूल्य से वर्जन, अनुकूल से संकल्प, और उसके द्वारा क्या होगा, धीरे धीरे हम ट्रांसेंडेंस की ओर चले जाएंगे। और इस तरह से हम जो है, कितनी भी हमारी डीप कंडीशनिंग होगी उसका हम सामना करके उसके परे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का एक सवाल है कोई, काफी टाइम ज्यादा हो गया है, आई वोंट टेक मच। ओके, यस प्लीज। हरे कृष्णा, हरे हरि बोल। थैंक यू, बहुत धन्यवाद है प्रभु, आपका बहुत अच्छा एनालिटिकल क्लास, बहुत अच्छा लगा। एक प्रश्न है, आजकल कभी कभी हम देखते हैं कोई कोई व्यक्ति जो एक एक तरफ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय, दे आर लाइक इन एवरी वे, एंड अनदर साइड he is doing very like na mischievous kind of very heinous activity. On one hand he is doing something very appreciative, on another hand the same person is doing very heinous activity, and it gives a doubt to people that is is he cheating or is he cheating himself. It's very difficult to conceive when such a case comes for everyone, and that create a great disturbance in the society. So how to understand this kind of mentality and with the light of scriptures also? यस, करेक्ट। तो कोई व्यक्ति है जो एक दृष्टि से बहुत अच्छा कार्य करता है और दूसरी ओर से बहुत दूसरी इलाके में, कुछ दूसरे एरिया में कुछ बहुत घृणास्पद कार्य करता है, तो कैसे देखना है इसको। तो क्या है, ये तो पीपल आर कॉम्प्लिकेटेड, कि सब में अलग अलग प्रकार के कंडीशनिंग्स होती है। तो कोई व्यक्ति हो सकता है कि मान लीजिए, अगर हम 3 कंडीशन देखते हैं, लस्ट, एंगर और ग्रीड, ये 3 कंडीशनिंग्स होती है। तो ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति में ग्रीड 0 होगा। मतलब वो व्यक्ति एक तरह से अगर उनके देखते तो वो निष्किंचन जैसे जी रहा है, पर उनमें एंगर बहुत हो सकता है। ग्रीड 0 है, एंगर बहुत है, गुस्सा बहुत आ जाता है इसमें। कोई व्यक्ति ऐसे हो सकता है, उनका जो एंगर, ये लेट्स कंसीडर दिस एज पर्सन 1। तो पर्सन 2 ऐसे हो सकता है कि उसमें एंगर लगभग 0 है। वो जब बात करते हैं तो इतना स्वीटली, इतना मधुरता से बात करते हैं, पर वो बहुत करप्ट है। वो क्या करते हैं, पीछे से जो है बहुत करप्शन करते हैं, पैसा खाते हैं। तो अभी क्या है, अभी वो जो ऐसे दिखावा कर रहे हैं, सही में बहुत शांत प्रवृत्ति के। ये दूसरा सेकंड प्रायोरिटी है। तीसरा हो सकता है कोई व्यक्ति
जो जिसमें एंगर बहुत लगभग ओके, आई हैव टू टेक अनदर कलर, लेट्स टेक दिस, नॉट अप्रूविंग इट बट आई एम जस्ट, ग्रीन कलर जो है उसमें क्या है, एंगर नहीं है पर लस्ट बहुत है। तो मतलब क्या है, वो बड़ी मधुरता से बात करते हैं पर कुछ अफेयर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो पीट होते हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कोई शुद्धिकरण हो जाएगा तो सभी अनर्थों से शुद्धिकरण हो जाएगा। हुँ? और वो एक तरह से अपेक्षा रीजनेबल है। अभी साधारणतः कैसे है कि किसी को किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में काम करना है तो सारे अनर्थों को कुछ हद तक तो नियंत्रण रखना चाहिए उसको। अगर वो नियंत्रण नहीं रख पाता है तो फिर वो कार्य नहीं कर, वो कैन नॉट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर अभी ऐसे हो जाता है कि कोई व्यक्ति है, कुछ कोई कॉलेज में होता है, स्कूल में कोई एक्सेंट्रिक टीचर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सिखाते बहुत अच्छा है, उनको ज्ञान बहुत है, पर वो बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनको डांटते हैं, उनको मारते हैं। तो आजकल तो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, पर पहले क्या है, ये टीचर बहुत अच्छा है, सिखाता अच्छा है, ज्ञान बहुत है, पर बर्ताव खराब है, तो उसको टॉलरेट कर लेते थे क्योंकि क्या है, टीचर अच्छा है। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि व्यक्ति में एक एरिया में बहुत अच्छे है वो, और किस हद तक द गुडनेस इन वन एरिया कैन मेक अप फॉर द प्रॉब्लम्स इन अदर एरिया। वो क्या है, वो बहुत ही इंडिविजुअल डिसीजन है। वो इंडिविजुअल, वो व्यक्ति को डिसाइड करना है, और व्यक्ति को जो गाइड करने वाले लोग हैं, अथॉरिटी है, उसको डिसाइड करना है कि कैन वी टॉलरेट दिस, क्या हम इसको सहन कर सकते हैं। तो अभी हम बोले कि हमको ऐसे लोग चाहिए वो हर तरह से शुद्ध है, तो मतलब ऐसे नहीं कि काम क्रोध लोभ जीरो है, पर क्या हम अपेक्षा करेंगे कि अगर काम क्रोध लोभ है तो वो कुछ तो मर्यादा में होना चाहिए। तो आइडियली अगर पहले से ऐसे ट्रेनिंग हुआ है और वैसे लोग आते हैं जो कुछ हद तक तो उसको रेगुलेशन रखते हैं, तो दैट इज द बेस्ट। पर ऐसे लोग होते हैं जो उनका एक चीज में बिल्कुल नियंत्रण नहीं है, तो फिर क्या करेंगे तभी हम। सो इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन। तो ये समझना ना कि अलग अलग लोगों में अलग अलग कंडीशनिंग्स होती है, और अभी इसमें मेनली दो, आई वुड टॉक अबाउट टू एक्सट्रीम्स। कुछ लोग हैं उनमें वो कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो प्रयास कर रहे हैं पर वो नहीं छोड़ पाते उसको, और कभी कभी क्या होता है, वो उसको छोड़ने का ही प्रयास छोड़ देते हैं, बोलते कि ये नहीं होने वाला है। मैं अमेरिका में था, मैं एक सिटी में था, वहाँ पे उसके प्रेसिडेंट है, वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, मेरे मित्र है वो, और वी हैव लॉट्स ऑफ फिलोसॉफिकल डिस्कशंस। पर क्या है, वो अमेरिका में बहुत टफ नेबरहुड में ग्रो हुए थे, जैसे गुंडे वगैरह रहते हैं, तो ही इज हिमसेल्फ मार्शियल, वो मार्शियल आर्ट में एक्सपर्ट है वो। तो वो जो है, तो पहले वो उसी पर्वत में थे, तो उनको जो गालियां देने का कुछ एफ वर्ड वगैरह जैसे वो यूज करते काफी। तो अभी जो था, अभी भारत से एक कपल था, वो उत्तर प्रदेश से, वो क्या त्रिवेदी चतुर्वेदी से बहुत शुद्ध परिवार था, वहां से वो अमेरिका में गए और मंदिर में जाके भक्त बन गए, सेवा करने लग गए। तो मैं उनके घर में रह रहा था, तो वो उसका टेम्पल में जगह नहीं थी रहने के लिए। तो जब रहा था तो वो दोनों आए मुझे मिलने को, बोले कि हम ये मंदिर में जाके सेवा कर रहे थे, पर वो जो मेरी पत्नी थी, जब वो वहाँ पे मंदिर में सेवा का भोग, राजभोग के लिए सेवा गई थी, तो हमने देखा वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट था वो किसी व्यक्ति को ऐसी गालियां दे रहा था और ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा था, मैं, अरे, माय वाइफ वाज शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड व्हेन शी टोल्ड मी। बोले कि वो ऐसे लोगों के साथ, तो मैंने अगर टेम्पल प्रेसिडेंट ही ऐसे है तो फिर मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी ऐसे मंदिर में भी जाए। तो फिर मैंने उनको पूछा, क्या आपने उसको बताया क्या? बोले नहीं, आओ कैसे बता सकते, वो तो सीनियर भक्त है। मतलब क्या मैं उनको बता सकता हूँ क्या? तो देन आई टॉक विथ हिम, तो उसने बोला है कि वो, मैं जिस परिवार में ग्रो हुआ तो उसमें लगभग परिवार और इलाके में, यू नो, nobody would speak even two sentences without using obscene words। हर दो वाक्य में कोई ऐसे बोलता था। तो वहां से जहां तक मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे ऑकेजनली जब मुझे गुस्सा आ जाता है ऐसे वचन बोल देता हूँ मैं, तो वह काफी दूर आ गया हूँ। तो बोले मैंने कई बार रिजॉल्व किया ना, इज अ वेरी सिंसियर डिवोटी, वेरी डेडिकेटेड डिवोटी, वेरी स्कॉलरली भी, लेकिन मैंने कई बार ऐसे फैसला किया है कि मैं आई विल नेवर स्पीक सच वर्ड्स। पर वो बोले कि उसमें मैं हमेशा इतने टेंशन में रहता हूं कि आई कैन नॉट फंक्शन बिकॉज ऑफ दैट।
तो बोले कि आई डिसाइडेड दैट दी एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो, कि मैं हफ्ते में एक बार ऐसे कुछ वचन बोल दूंगा और वो वैसा एक बार वचन ना बोले, इसके लिए सारे हफ्ते भर चौकन्ना रहना। मेरा इतना एनर्जी उसमें जा रहा था कि मैं बाकी सेवा नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए बोला कि आई डिसाइड आई कैन नॉट फाइट दिस बैटल। बोले कि ये आई हैव टोल्ड पीपल अराउंड मी दैट समटाइम्स इफ आई स्पीक सच वर्ड्स डोंट टेक इट सीरियसली। तो ही सेड आई विल टॉक विद देम बट यू आल्सो एक्सप्लेन टू देम। तो वे बोले कि द फर्स्ट व्हेन आई हर्ड इट आई आई अप्रिशिएटेड द सिंसियर स्ट्रगल। वे क्या है कि कोई भी अनर्थ को रोकना है उसके लिए कितना एफर्ट करना पड़ रहा है, और क्या वो एफर्ट करने में उससे क्या हमारी बाकी सेवा पे इफेक्ट हो रहा है। तो क्या है कि ये अभी उन्होंने इस तरह से फैसला किया है। नाउ इज दैट द राइट थिंग? वो उस कल्चर में, उस सेटिंग में इट्स ओके, इट वर्क्स। सो आई उनके जो जीबी से थे उनसे भी मैंने बात किया, तो बोले कि ठीक है, ये वी ऑल नो ही इज लाइक दिस, बट ही इज वेरी सिंसियर हार्टेड, अच्छे सेवा कर रहे हैं। तो अभी ये जो है क्या है कि थोड़ा एजिटेटिंग है, पर ये जो है ये इससे कोई ऑब्जेक्टिव हार्म नहीं हो रहा है। पर कोई बोलता है कि कोई किसी कोई ऐसा अनर्थ है जिससे वो दूसरों को हार्म कर रहा है, तो फिर उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। तो क्या है कि ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कैथोलिक चर्च में बहुत चाइल्ड अब्यूज हुआ था, और चाइल्ड अब्यूज का बहुत स्कैंडल हो गया। तो ये अनेक धार्मिक संस्थाओं में हुआ है, पर वो बड़ा स्कैंडल क्या हुआ था, वो चाइल्ड अब्यूज को उन्होंने कवर अप कर दिया। पर जब कवर अप किया तो वो क्या, वो एक षड्यंत्र था। एक्चुअली वो एक फिलोसॉफिकल कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन है कि क्या ये चाइल्ड अब्यूज जो किया गया है, इज इट अ सिन टू बी फॉरगिवन बाय द चर्च, और इज इट अ क्राइम टू बी पनिश्ड बाय द स्टेट? क्या ये पाप है जो हम उसको माफ कर सकते हैं उसके लिए? क्या ये गुनाह है इसके लिए हमको इसको पुलिस को हवाले करना चाहिए और पुलिस उसका देखेगी? तो अगर मान लीजिए कोई भक्त कुछ गलती करता है, हाँ, तो क्रोध के वश में आके, काम के वश में आके, लोभ के वश में आके कुछ गलती कर देता है, तो क्या वो पाप है या वो गुनाह है? ये एक सीरियस कंफ्यूजन है। अगर पाप है तो हम उनको बोलेंगे तुम जाके वृंदावन में रहो, 64 माला करो, रोज गंगा में स्नान करो, या रोज ये ऐसे मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो, ये करो, उससे आप शुद्ध हो जाओ। वो सत्य है, पॉसिबिलिटी है वो, पर वो पाप के लिए अभी क्या पाप है क्या गुनाह है, वो थोड़ा जो लाइन है वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में फजी हो जाता है। क्योंकि क्या है, इफ इट इज अ क्राइम तभी जस्टिस चाहिए, इफ इट इज अ सिन वहां पे मर्सी आ सकता है। तो गुनाह होगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर पाप है तो क्या है, उसे कृपा से माफी आ सकती है। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत गलत कार्य कर देता है तो वो खुद वैसे सोच सकता है कि ठीक है ये हो रहा है पर इतनी सेवा तो कर रहा हूं मैं, चलने दो उसको। उसके अथॉरिटीज भी सोच सकते हैं कि ठीक है ये जो है हो रहा है पर ये अच्छी सेवा कर रहा है। तो अभी वो कैसे करना है, इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कैसे बैलेंस करना है। क्योंकि क्या होता है, अलग अलग लोग अलग अलग अपेक्षाओं से आते हैं कि अगर हम मंदिर में आ रहे हैं तो कोई व्यक्ति ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर अगर कोई मंदिर में आते हैं या सत्संग में आते हैं, कोई डिवोटी बहुत अच्छी सेवा करता है पर वो ऐसे कार्य भी करता है, तो फिर क्या करना है उसको। तो आई थिंक ये जो है कुछ हद तक हर एक जगह के अथॉरिटीज को डिसाइड करना चाहिए, और अगर हम ऐसी परिस्थिति में अथॉरिटी में तो हमें डिसाइड करना है। हम अथॉरिटी में नहीं है तो जो भक्त उससे एजिटेट हो गए उनको समझाना चाहिए हमको कि कंडीशनिंग अलग अलग में अलग अलग होती है। तो अगर उनमें ये कंडीशनिंग है तो उससे तुम्हें प्रभावित कर, तुम दूर रहो उससे, या उस स्टे अवे फ्रॉम दैट साइड ऑफ दैट पर्सन, उसके बारे में देखो मत, उसका विचार मत करो। प्रभुपाद जी ने, मेक वन लास्ट पॉइंट, प्रभुपाद जी ने हमारी संस्था का नाम क्या दिया है, इंटरनेशनल सोसाइटी यस फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इट इज नॉट इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। मतलब क्या है फर्क इसमें, ऑफ और फॉर में? ऑफ मतलब क्या है, ये सोने का खजाना है, यहां पे आओ और सोना जितना सोना चाहिए उतना ले लो आप, नहीं वो इट इज नॉट ऑफ। ये क्या है, फॉर मतलब ये सोने का माइन जैसे है, ये जमीन में सोना है पर हमको खुद को आके यहाँ पे हमको डिग करना है, हमको खनना है वो। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस रेडीली अवेलेबल है, यहाँ पे आके हमको कल्टीवेट करना है। अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं कल्टीवेट कर रहे हैं, कुछ और कल्टीवेट कर रहे हैं,
हम कृष्ण कॉन्शियसनेस कंट्रोवर्सी कॉन्शियसनेस कल्टिवेट कर रहे हैं, अरे इसने ये किया उसने वो किया, तो हमारा कृष्ण भावना विकसित नहीं होगा। तो इसीलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरुनंदना, मैं यहां पे किस लिए आया हूं और कौन से भक्तों के संग से मैं वो विकसित कर सकता हूं, वो भक्तों का संग मैं लेता हूं। तो कई बार मैं जब विश्व में ट्रैवल करता हूं तो लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन में ये हो गया, उसमें वो हो गया, उसमें हो गया। बोलते हैं कि आई टेल देम दैट व्हाट इज इस्कॉन फॉर मी। इस्कॉन में बहुत कुछ हो रहा है, बट व्हाट इज माई इस्कॉन? माई इस्कॉन इज द डिवोटीज हु इंस्पायर मी। वो भक्तों का संघ है। मैं व्हेन आई एम स्पीकिंग, मैं कभी क्लास में नहीं बोलता तुम जाके इस्कॉन ज्वाइन करो। मैं क्या बोलता हूं कि दीज आर द वैल्यूज, ये वैल्यूज से आपके जीवन को वैल्यू आएगा, तो लिव अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यूज। और इस्कॉन में आपको इन वैल्यूज में जीने की फैसिलिटी है, पर वो फैसिलिटी को आपको यूटिलाइज करना है। तो इसीलिए हमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी ऑन द इंडिविजुअल। प्रभुपाद जी बोला करते थे ईच वन ऑफ अस हैज टू फ्लाई आवर ओन प्लेन। तो अगर कोई भक्त है जिसके बर्ताव से हम विचलित हो रहे हैं तो कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम, रिस्पेक्ट देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। बट हम कृष्ण भावना के लिए यहाँ पे आए हैं, तो कैसे हम उन भक्तों का संग करें जिनसे हमें कृष्ण भावना में प्रेरणा मिलती है, वो हमारी जिम्मेदारी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे।